हाँ जी स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बेटा लास्ट टाइम असी ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਡ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਵਿਚ ਯੰਗ ਵਨਸ ਆਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ through the process of formation and fusion of gametes. It is usually biparental, that is involves the cooperation of two sexual individuals, male and female. ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਏ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਗੈਮੇਟਸ ਆ ਉਹ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਊ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਡੈਟ ਦ ਬੁਲਸ ਅਲੋਨ ਕੈਨ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਾਫਸ, ਨਾਈਦਰ ਹੈਨਸ ਅਲੋਨ ਕੈਨ ਫॉर्म chicks. However, in plants and some lower animals, both the sexes may occur in the same individual. The self-fertilization can occur. So, sexual reproduction is the improvement of asexual reproduction. It improves the heredity, increases variation and prevents overcrowding. So, sexual reproduction ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, asexual reproduction ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ठीक है। ओवर क्राउडिंग ਨੂੰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਾਈ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮੋਡ ਆਫ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮੋਡ ਆਫ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕਾਹਤੋਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਏ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਿਊ ਸੈਲਸ ਔਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਡਿਵੈਲਪ ਫਰੋਮ ਦਾ ਕਾਪਿੰਗ ਆਊਟ DNA ਐਂਡ cellular apparatus. Copying is not absolutely perfect. It results in errors which give rise to the variation. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਏ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਕਾਪੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਫਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਫਲਾਵਰ ਆ, ਫਲਾਵਰ ਰੈੱਡ ਫਲਾਵਰ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਰੈੱਡ ਫਲਾਵਰ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮੀਬਾ ਤੋਂ ਅਮੀਬਾ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੈਟਰ ਮੋਡ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਬਾਈਨਸ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ two individuals give rise to a new combination of variants. Such combination is novel as it involves different individuals which have accumulated variation from their ancestors. In the process of sexual reproduction also no reshuffling of genes, new combination due to crossing over during meiosis, chances separation, chances combination. So main ਮੁੱਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਦੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਲ ਗੈਮਿਟਸ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਓਵਮ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ 100% ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ, ਬਟ ਏ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੀਚਰ ਇਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਈ ਪੈਰੈਂਟਲ ਆ। ਜੇ ਬਾਈ ਪੈਰੈਂਟਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲ ਦਾ ਗੈਮੇਟ, ਮੇਲ ਦਾ ਸਪਰਮ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਓਵਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਊਜ਼ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਫॉर्म्स ਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਸੋ ਇਟ ਫॉर्म ਦਾ ਨਿਊ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮਿਓਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਓਸਿਸ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੰਬਰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਟੂ ਦਾ ਹਾਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਓਸਿਸ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਲ ਦਾ ਸਪਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 46 ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਮੇਲ ਕੋਲ ਆ ਅਤੇ 46 ਹੈਗੇ ਫੀਮੇਲ ਕੋਲ। ਹੁਣ 23 ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਇਹਦੇ ਅਟੈਚ ਹੋਊਗੇ ਅਤੇ 23 ਇਹਦੇ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਲ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਕਪਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 23 ਇਹਦੇ 20 ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ 46 ਬਣਦੇ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਮੰਮੀ ਦੇ 23 ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਦੇ 23 ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ 46 ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਿਓਸਿਸ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਮਿਓਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੰਬਰ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 46 ਸੀ ਨਾ, 46 ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 23, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 46 ਤੋਂ 22 ਉਹ ਦੋਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 46 ਬਣਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦੀ ਗੈਮੇਟਸ। ਗੈਮੇਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਗੈਮਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਲ ਦਾ ਸਪਰਮ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਐਗ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਐਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ, ਓਵਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਔਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਦੋਨੇ ਗੈਮਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, 2 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਹੈਪਲੋਇਡ ਗੈਮਿਟਸ ਫਿਊਜ਼ ਡੂਰਿੰਗ ਦ ਐਕਟ ਆਫ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। उस प्रोसैस नूं की बोलते हैं, दोनों फ्यूजन प्रोसैस नूं फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, और वो की होंगे डिप्लॉयड सैल, इस करके उसका नाम की है जाइगोट। और जाइगोट जिहड़ा वो साडी बॉडी का फस्ट सैल होंदा, फस्ट सैल ऑफ आवर बॉडी होंदी है। ठीक है ना। हुण फर्टिलाइजेशन 2 टाइप्स की होंदी है, एक्सटर्नल भी होंदी है, इंटरनल भी होंदी है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अक्कर जिहड़ी होंदी आउटसाइड द फीमेल बॉडी, फ्रॉग, फिशिज। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होंदी है जिहड़ी बॉडी के इनसाइड होंदी है फीमेल दे विच, मैमल्स के बर्ड्स तो रेप्टाइल्स, इंसैक्ट्स, स्पाइडर्स। ये सारिया बेटा डेफिनेशन तुसीं 8th क्लास में तुहानूं याद आ भी उस चैप्टर च पढ़िया हुई। इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये तुसीं सारा कुछ उत्थों पढ़िया होया, सेम सारा प्रोसीजर वही है। ठीक है। और नैक्सट आ जाता आ भी डेफिनेशन पढ़िया विविपेरस की होंगी। यंग वंस डिवेलप इनसाइड द वॉर्म ऑफ फीमेल इन ओनली मैमल्स, ह्यूमन बींग्स द मैमल्स द एनीमल्स कह लो, जिन्हां दे विच जिहड़े यंग वंस आ ऑर्गेनिज्म आ इनसाइड द बॉडी इनसाइड द वॉर्म ऑफ फीमेल जिहड़े प्रोड्यूस होंदे आ, एंड दे गिव वर्थ टू यंग वंस, उन्होंने विविपेरस कहने आ। ते ओविपेरस वो होंदे आ बेटा जिहड़े एग्स लेज करदे आ, जिहड़े एनीमल्स जां जिहड़े जिद्दां फ्रॉग की एग्जाम्पल लै लो। ठीक है, वो एग्स लेज करदे उन्होंने ओविपेरस बोलदे आ। और जाइगोट तुहानूं पता ही है सिंगल सैल डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होंदा, फर्टिलाइजेशन जो होंदी उस तो बाद बनता है। द जाइगोट डिवेल्प्स इनटू न्यू इंडिविजुअल, ऑल द सेल्स डिविजन्स आर माइटोटिक। ठीक है, अंडरस्टूड। सो आ डिफरेंस यू कर लो हो जाना तुहाडा सिग्नीफिकेंस। ये लास्ट पॉइंट है कि वेरीएशन, जो कि मेन मुद्दा सीगा कि ये सैक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों चूज़ की जाती है, क्योंकि जी वेरीएशन है हुण एग्जाम्पल आ तुसीं अपनी एग्जाम्पल लै सकते हो। एक क्लास के 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों की शक्ल डिफरेंट आ, क्यों? क्योंकि 30 के वेरीएशन है, इस करके सैक्सुअल रिप्रोडक्शन की होंदा वेरीएशनस जी अक्कर होंदी है। अंडरस्टूड। ये सब तो वधिया एग्जाम्पल है, तुसीं अपनी लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। सिग्नीफिकेंस की होंदा सैक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरीएशनस होंदियां। सो पहली गल वही आ गई बैटर अडैप्टेबिलिटी। ठीक है, फिर बैटर अडैप्टेबिलिटी मतलब भी हुण असीं हुण अजकल गर्मी चल रही है, गर्मी का मौसम, असीं अपने आप नूं उस तरह अडैप्ट कर लिया अपने एनवायरनमेंट के हिसाब नाल। अगे आके ठंड आ जानी, असीं अपने आप नूं फिर उदां नाल। सो उहनूं कहंदे आ बैटर अडैप्टेबिलिटी। अकॉर्डिंग टू चेंज एनवायरनमेंट असीं अपने आप नूं उस स्थिति दे विच रहन लई योग करते हैं। ठीक है। वाइगर विटैलिटी। ठीक है, वाइगर विटैलिटी मीनस उसकी एनर्जी में मेनटेन करके रखना अपनी। हार्मफुल ट्रेड्स आर ऑफन कैप्ट सप्रेस्ड बिकॉज ऑफ रीशफलिंग ऑफ जीन पेयर्स दैट अकर्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन। ठीक है। नियर यूनिफॉर्मिटी ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू द फ्लो ऑफ जीन्स amongst individual during sexual production, the uniform population maintained where there is broad semblance of all in with one another. ठीक है। सो साड़ी थोड़ी बहुत जी रिसैम्बलेंस आ साढ़े पेरेंट्स नाल मिलती होंगी है, बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा वेरीएशनस होंगे। साढ़े करैक्टर्स जोड़े वो साढ़े पेरेंट्स नाल मिलते होंगे। एवोल्यूशन आ चेंजिज आउंदियां रहिंदियां अगे तो अगे, जैनेटिक चेंजिज जो साड़ी फैमिली जो थोड़ी बहुत चलती रहिंदियां। ठीक है। सो ये डिफरेंस है सैक्सुअल तो एसैक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैक्सिमम टाइम्स जो पेपर के भी आस्क किया गया, क्वेश्चन पूछा गया है। एसैक्सुअल तो सैक्सुअल, एसैक्सुअल तुहानूं दस्सिआ यूनीपेरेंटल हुंदा सीगा, सैक्सुअल जिहड़ा हुंदा वो हुंदा बाईपेरेंटल। ये विच गैमेट्स नहीं बनते, ये गैमेट्स सैक्सुअल रिप्रोडक्शन के गैमेट्स फॉर्म होंगे, मेल गैमेट स्पर्म तो फीमेल गैमेट ओवम। ये माइटोटिक डिवीजन होंगी है, ये मियोसिस अकर वंस, ऑल अदर डिवीजन आर माइटोटिक। ठीक है। फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होंगी है, ये सारिया चीज़ां तुसीं कर लो। ठीक है बेटा, एक बार पढ़ के देख लो, ये सारा कुछ रिपीट होया। नैक्सट आंदा सैक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हुण देखो फ्लावर एक कंडेंस शूट आ विच जिहदे विच मेल तो फीमेल पार्ट्स दोनों ही अवेलेबल होंगे हैं। ठीक है। और इट इज़ बॉर्न ओवर ए स्टाक और पेडिसल।
देयर इज़ अ ब्रॉड बेस कॉल्ड थैलेमस। थैलेमस बियर्स 4 टाइप्स ऑफ फ्लोरल ऑर्गन्स। हुण साडे जो थैलेमस हुंदा प्लांट्स दे विच आ थैलेमस पार्ट आ नीचे वाला पार्ट इहदे कोल 4 टाइप दे 4 टाइप्स के जोड़े आ फ्लोरल ऑर्गन्स होंगे। हम केड़े 4 टाइप्स के आ, एक होंदा सैपल्स। सैपल्स आ देखो पहले नंबर पे, पैटल्स, स्टेमन्स ते स्टाइल। स्टाइल्स सॉरी पिस्टल जो बोलते हैं, कार्पर बोलते हैं। ठीक है, हुण सैपल्स ते पैटल्स हैव नो डायरैक्ट फंक्शन, इहदा कोई फंक्शन नहीं होंदा रिप्रोडक्शन दे विच। सैपल्स का तो पैटल्स का कोई फंक्शन नहीं होंदा। ठीक है, फिर उस तो बाद आ जाता तुहाडा दे आर कॉल्ड असैसरी और नॉन असैंशियल फ्लोरल ऑर्गन। इन्होंने असैसरी और नॉन असैंशियल ऑर्गन भी कहते हैं। सो स्टेमन्स एंड कार्पल्स आर असैंशियल फ्लोरल। मेन रोल किहदा आ, स्टेमन का, जिहड़ा कि जिन्हों असी मेल पार्ट बोलते हैं, स्टेमन जिन्हों असी मेल पार्ट बोलते हैं, और पिस्टल वो कार्पल भी बोल सकते हैं, उन्होंने असी फीमेल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, हुण ये असी करना है, देखो सारे ने स्ट्रक्चर बनाना है अपनी बुक विच। ठीक है, ठीक है, देखो इनू असी बोलांगे थैलेमस, जिसके उपर सारा फ्लावर जिहड़ा वो अरेंज होया पिया। हुण आ जिहड़ियां हैगियां सैपल्स, तुसीं एक फ्लावर नूं लैके उहनूं देख सकते हैं, ये की है सैपल्स। ठीक है, उस तो बाद आ जिहड़ा पार्ट होंदा है, इस पार्ट नूं बोलते हैं असी ओवरी। ठीक है, इस पार्ट नूं जिहड़ी ये टाणी जाती उपर नूं ब्रांच जिहड़ी जाती है, इस नूं असी बोलते हैं तुहाडी स्टाइल। और साडे कोल आ पार्ट आ जाता, इन्हूं बोलते हैं असी स्टिगमा। हुण ये तिन्नों पार्ट जिहड़े हैगे फीमेल पार्ट आ, इन्हूं असी जां तां पिस्टल बोलदा जां असी तुसीं कार्पल बोल सकते। ठीक है, अंडरस्टूड है। आई थिंक यू बैटर अंडरस्टैंड, सारिਆਂ ਨੂੰ समझ लग रही है। सो ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟ ऑफ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟਾਹਣੀਆਂ ਆ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ब्रांचिस ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ठीक है। हुण ये वालियां चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਪੈਟल्स, आ सैपल्स। हुण सैपल्स ते पैटल्स का रिप्रोडक्शन दे विच कोई फंक्शन नहीं होता, देयर इज़ नो फंक्शन। ठीक है, इन रिप्रोडक्शन ऑफ सैपल्स एंड पैटल्स का कोई ना दोनों कोई फंक्शन नहीं होता। और ये जड़ा आ फीमेल पार्ट आ, इनू पिस्टल, ये 3 पार्ट होंगे। तो सब तो पहला ओवरी, जिथे जाके सारी रिप्रोडक्शन होंदी है। उस तो बाद स्टाइल, आ जी ब्रांच आ पूरी, और ये आते स्टिगमा। अंडरस्टूड। और नैक्सट तुहाडा पार्ट आ जाता जिहड़ा मेल पार्ट होना बेटा, मेल पार्ट दे विच आ गया एंथर, जिहड़ा उपरला स्फेरिकल स्ट्रक्चर होंदा है। ठीक है, इनू एंथर बोलते हैं। और इहदी जिहड़ी आ ब्रांच आ, इनू असी बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, और ये दोनों नू असी बोलते हैं स्टेमन। हुण लग गई समझ। सो दिस इज़ द मेल पार्ट एंड दिस इज़ द फीमेल पार्ट। ओके, ठीक है। सो 4 फ्लोरल उन्हें पार्ट्स क्या सीगा, सैपल्स, ठीक है, पैटल्स, पिस्टल एंड स्टिगमा, ये तुहाडे सामने। ठीक है, सो नैक्सट आ जाता तुहाडा, देखो ये चारों इन्हें एक्सप्लेन किया है। नॉन असैंशियल फ्लोरल, ये तुहानू डायरैक्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, कि वट आर द नॉन असैंशियल फ्लोरल ऑर्गनस किहड़े आ, या वट आर द एक्सैसरी ऑर्गनस ऑफ द फ्लावर, तो तुसीं दस सकते हैं जिहड़े आ
जिन्हां दा कोई काम नहीं होंदा, ठीक है, वो सीगे अपने सैपल्स ते पैटल्स। तो दूजा क्वेश्चन बनता है चो वट आर द असेंशियल ऑर्गनस, वो हो गए तुहाडे स्टेमन्स एंड कार्पल्स। वैसे भी तुहानूं पूछ सकते हैं मेल पार्ट नूं की कहंदे आ, फीमेल पार्ट दे विच किहड़े पार्ट्स आउंदे आ, ठीक है, वो कल्ले का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ये तुहानूं कल्ले कल्ले का स्ट्रक्चर आना चाहिए। अंडरस्टूड है। तो स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गनस वैल कार्पल्स आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गनस। ये भी पूछ सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किहड़ा, फीमेल किहड़ा आ। सो मेल किहड़ा आ स्टेमन, तो फीमेल किहड़ा आ तुहाडा कार्पल। अंडरस्टूड है बच्चे। सो फ्लावर्स आर द कॉल्ड यूनिसैक्सुअल, फ्लावर्स आर कॉल्ड द यूनिसैक्सुअल इफ दे हैव ओनली वन टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जेकर फ्लावर को एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, चाहे मेल चाहे फीमेल, तो उन्होंने असीं की बोलांगे यूनिसैक्सुअल। इफ दे हैव ओनली वन टाइप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आइदर स्टेमन और कार्पल, या स्टेमन होगा या कार्पल आऊगा, ठीक है। जिदा पपीता हो गया, वाटरमैलन हो गया, दे आर नोन फ्लावर्स आर कॉल्ड द यूनिसैक्सुअल इफ दे हैव ओनली वन टाइप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आइदर स्टेमन और द कार्पल्स, ठीक है। सो दे आर द नॉन बाईसैक्सुअल ये फ्लावर बोथ है। जे हुण जिस को दोने मेल पार्ट भी है तो फीमेल पार्ट भी है, ठीक है, उन्होंने असी की बोलेंगे बाईसैक्सुअल फ्लावर। हाँ देखो, सो ये मस्टर्ड हिबिस्कस लै सकते हो। प्लांट्स विद यूनिसैक्सुअल फ्लावर्स आर मोनीशियस, उन्होंने मोनीशियस भी कहते हैं। जे अगर इफ बोथ फीमेल फ्रॉम द सेम इंडिविजुअल, ठीक है, दे आर कॉल्ड डाइशियस, ठीक है। हुण लगी समझ, हो जूगा तुहाडा ये सारियां सिंपल डेफिनेशनस है, तो सारियां इंपॉर्टेंट है और तुहानूं सारियां दियां एग्जाम्पल्स बेटा पता होनी चाहिए आ वाली, ठीक है। किसी को एक का किसी को दो आ, कि एग्जाम्पल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारियां एग्जाम्पल्स। नैक्सट आंदा सैपल्स। सैपल्स नूं तुसीं सैपल्स का अदर नेम की है कैलैक्स, ठीक है। सो आर का ग्रीन कलर आउटर मोस्ट लीफ लाइक फ्लोरल ऑर्गन जिहड़ा कि फ्लावर नूं की करदा है प्रोटैक्ट करता है इन द बड स्टेज, ठीक है। सो इन मैच्योर स्टेज दे प्रोवाइड सपोर्ट्स टू अदर फ्लोर, जो मैच्योर हो जाता फ्लावर तो होर बाकी ऑर्गनस में भी सपोर्ट करता है। पैटल्स नूं असीं करोला भी बोलते हैं। सो कलर्ड होंदियां, इहदा मेन काम यही है कि एक फ्रैगनेंट प्रोड्यूस करदियां ते इंसैक्ट्स नूं अपने वल नूं इंट्रैक्ट करदियां, काहदे वास्ते, पॉलीनेशन वास्ते। ये तुहानूं आ सकदा क्वेश्चन, ठीक है, अंडरस्टूड। सो दे आर आल्सो प्रोवाइड प्रोटैक्शन टू सेंट्रली प्लेस्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गनस, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गनस आ उन्होंने प्रोटैक्ट भी करता है। स्टेमन्स आ जाता, स्टेमन्स नूं एंड्रोशियम बोलते हैं असीं, स्टेमन्स नूं की बोलते हैं एंड्रोशियम बोलते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता फ्लावर का। हरेक स्टेमन है स्लैंडर स्टाक आ फिलामेंट, ठीक है ना, आ तुसीं आ देख सकते हो हरेक स्टेमन के कोल एक सिलेंडर स्टाक आ वाली आ सिलेंडर स्टाक आ, जिन्होंने असीं फिलामेंट बोलते हैं, और उपर जो डबल मैंबरेन अटैचड है इन्होंने असीं एंथर बोलते हैं, ठीक है। सो एंथर हैज़ टू लोब्स, एंथर दी दो लोब्स होंदियां कनैक्टेड बाय कनैक्टिव टिश्यूज़, ईच एंथर लोब हैज़ टू पॉलन सैक्स और देयर आर द। हुण इस जिहड़ा एंथर है ना बेटा, आ जिहड़ा एंथर दो बाईलोब्ड बोलते सी, बाईलोब्ड मतलब आ एक दो लेयर्स है इहदियां, ये बाईलोब्ड इस करके बोलते क्योंकि दो लेयर्स आ और इहदे विच जिहड़े एंथर पॉलन ग्रेन्स आ इहदे विच प्रेजेंट होंदे ने इनसाइड। सो असीं जदों तुसीं शायद पॉलीनेशन की तुहानूं डेफिनेशन पता होवे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, उन्होंने असीं पॉलीनेशन बोलते हैं। ये तुसीं पहलां भी डेफिनेशनस पढ़ियां होईयां, छोटी क्लासिस भी पढ़ियां, ठीक है। सो अंडरस्टूड आ। नैक्सट तुहाडा कार्पल्स आ जांदा, ये सेंटर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गनस हुंदा, इहनूं मोनो जे एक ते मोनोकार्पस बोलांगे, इट इज़ कॉल्ड इवन नंबर ऑफ कार्पल्स ज़्यादा प्रेजेंट है उन्होंने पॉलीकार्पस बोलांगे, ठीक है। सो दिस इज़ द सो ये तुहाडियां सारे यो ही एक्सप्लेन किया है जो फ्लावर जो मैं तुहानूं डायग्राम से दस्सिआ। पॉलीनेशन आ जाती है, पॉलीनेशन ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, पॉलीनेशन बोलते हैं दो टाइप्स की होंदी, सैल पॉलीनेशन, ठीक है। तो हुण देखो ये तुहानूं डिफरेंस दसना सैल पॉलीनेशन ते क्रॉस पॉलीनेशन। सैल पॉलीनेशन बेटा होंदी आ जिद्दां फ्लावर आ, इस फ्लावर का जिहड़ा एंथर आ उहदे पॉलन ग्रेन्स मूव करते आ फ्रॉम वन पार्ट टू अदर, ठीक है। इस प्लांट
आ प्लांट है ना तुहाडे कोल, ठीक है, पूरा प्लांट है। इस फ्लावर ये मैनी फ्लावर्स प्रेजेंट आ इस प्लांट के कोल, ठीक है, बहुत सारे फ्लावर्स प्रेजेंट आ। इहदा आ 1 नंबर, आ 2 नंबर, आ 3 नंबर फ्लावर आ। जो आ फ्लावर जिहड़ा एंथर आ ये ट्रांसफर होंदा फ्रॉम वन कि दूसरे फ्लावर को, सेम प्लांट दे, प्लांट सेम ही आ तो उसनूं असीं बोलांगे सैल पॉलीनेशन या ऑटोगैमी बोलते हैं, ठीक है जी। अगर इस फ्लावर प्लांट तो दूजे प्लांट ते मूव करता है पॉलन ग्रेन्स, इंसैक्ट लैके जा रहे हैं तो उन्होंने असीं बोलांगे एलोगैमी या फिर क्रॉस पॉलीनेशन। अंडरस्टूड आ बच्चे। सो ये सारियां डेफिनेशनस दित्तियां हुई हैं, तुहानूं समझ ईजिली समझ लग जानी। ये पहला सारा कुछ पढ़िया होया बेटा आपने, ठीक है। हुण नैक्सट पार्ट आ जांदा तुहाडा फर्टिलाइजेशन, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन फर्टिलाइजेशन की होंदी है। हुण जिस तरह आपां ने सैक्सुअल प्रोडक्शन पढ़िया सीगा मेल फीमेल दे विच आपां पढ़दे आ रहे हैं शुरू तो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जिद्दां मेल पार्ट हुंदा सीगा अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करदा सी, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स उन्हें गैमेट्स प्रोड्यूस किए स्पर्म, तो फीमेल ने प्रोड्यूस किया अपना एग, तो दोनों आपस में फ्यूज़ करते ही उन्होंने फर्टिलाइजेशन होंगी, उस प्रोसैस में की बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। सो वो की जाइगोट बनाते सी ओबीअसली। हुण जे आप ये भी मेल तो फीमेल पार्ट्स पढ़ लिया तो ओबीअसली ये भी तो उदा ही फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। सो ये की होंदा कहता आफ्टर फॉलिंग ओवर द स्टिग्मा द पॉलन ग्रेन अब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इट प्रोड्यूस ए ट्यूब कॉल्ड पॉलन ट्यूब। हुण असी पॉलीनेशन पढ़ के हटे सीगे, ठीक है। वो जिहड़ी पॉलीनेशन सीगी असी किया सीगा कि जदों एंथर एक एंथर दूजे पॉलन एंथर एक जगह तो दूजी जगह मूव करता स्टिग्मा ते, क्योंकि स्टिग्मा फीमेल पार्ट आ, एंथर मेल पार्ट आ। एंथर जिहड़े पॉलन ग्रेन्स जिहड़े आ उहदे विचों निकल के उस पॉलन ग्रेन्स ने कित्थे मूव कर जाना स्टिग्मा को। जदों स्टिग्मा को चला गया हुण उही गल इन्हें इत्थे की आ कि आफ्टर फॉलिंग ओवर स्टिग्मा, जो स्टिग्मा ते आके उन्हें गिरना है किन्ने पॉलन ग्रेन ने, उन्हें की कर लेना पानी वाटर वगैरह ऑब्जॉर्व कर लेना। देखो आ सारा वो अंदरला स्ट्रक्चर आ तुहाडे फ्लावर का, जिहड़ी ओवरी सीगी ना ओवरी बनी हुई आ उहदी पॉलन ट्यूब सीगी, ठीक है। अंडरस्टूड आ देखो ये आही पढ़ रहे हैं असीं सारी। हुण असीं कल्ला आही मैं तुहानूं आह स्ट्रक्चर बारे दस रहा, आ ओवरी है, ठीक है, आ उहदी स्टाइल सीगी जिहनूं पॉलन ट्यूब बोलते हैं, ये ही पॉलन ट्यूब बननी है और आ स्टिग्मा है, ठीक है। हुण पॉलन ग्रेन इत्थे आके बैठ गया, ठीक है, पॉलन ग्रेन इत्थे आ गया, उन्हें न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो सारा कुछ ऑब्जॉर्व कर लिया। कहना पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू स्टाइल एंड रीचिज द ओवरी। की करना पॉलन ट्यूब ने ग्रो करना शुरू कर देना और कित्थे पहुँच जाना ओवरी दे कोल पहुँच जाना। ये अंदरों अंदर ग्रो करेगी इनसाइड यही ग्रोथ होगी और इन्हें कित्थे पहुँच जाना ओवरी दे कोल, ठीक है। सो इट टिप्स कंटेन ए ट्यूब न्यूक्लियस। हुण इहदी टिप कोल की प्रेजेंट आ देखो न्यूक्लियस आ न्यूक्लियस प्रेजेंट है विच एंड 2 मेल गैमेट्स और स्पर्म सेल्स। होर इहदे कोल की प्रेजेंट है मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट आ देखो, ठीक है। ये तो की है मेल गैमेट्स आ। सो द एडवांसिंग पॉलन ट्यूब एंटरस एंड ओव्यूल। जदों इस पॉलन ट्यूब ने एंटर कर जाना ओव्यूल दे विच, ओवरी है ना ये एंटर कर जाना, ठीक है। सो जनरली थ्रू द माइक्रोपाइल एंड, एक 2 एंड होंगे ये इस पॉलन इस पूरे स्ट्रक्चर के, जिहड़ा आ एंड होंदा बेटा इनू असीं बोलते हैं चलाजा एंड, चलाजा एंड। और जिहड़ा नीचे वाला पार्ट ए वाला एंड आ इनू असीं बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड। हुण तुहानूं क्वेश्चन पेपर में ये आ सकता कि जदों पॉलन ग्रेन एक एक्सपैरीमेंट तौर पर भी कई बार पूछ लेंदे होंदे क्वेश्चन एग्जाम के 10th क्लास बहुत बार एक्सपैरीमेंट भी आता होंदा कि एक पॉलन ट्यूब एक एंथर जिहड़ा आ वो स्टिग्मा के उपर आके बैठता है तो अपनी पॉलन ट्यूब राइज करता है, वो पॉलन ट्यूब जाती है तो वो किहड़े पासों एंटर करती है ओव्यूल दे विच, चलाजा एंड तो एंटर करती, चलाजा एंड आ वाला हुंदा, चलाजा एंड तो करती है ਜਾਂ फिर माइक्रोपाइल कितों एंटर करती है माइक्रोपाइल का आंसर क्या होगा माइक्रोपाइल एंड तो एंटर करती है। अंडरस्टूड है।
सो बेटा कल्ली कल्ली चीज़ समझा रहे हैं तुहानूं, बहुत इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स दे विच किवें हुंदी है फ्लावरिंग दे विच। सो हेयर द ट्यूब ब्रस्ट रीचिज द इंटीरियर ऑफ एम्ब्रोसाइट, हेयर द ट्यूब ब्रस्ट एंड रिलीज 2 मेल गैमेट्स। हुण जदों इहने एंटर कर जाना, ये ट्यूब जिहड़े ब्रस्ट हो जानी तो 2 मेल गैमेट्स जिहड़े एंटर कर जाने अंदर। 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विद एग और ओस्फोर टू फॉर्म द डिप्लॉइड ज़ाइगोट। हुण देखो आ 3 एग सैल, इन्हां विचों एक एग सैल आउंदा, इहनूं असीं फीमेल गैमेट्स बोलते हैं। आ जिहड़े 3 प्रेजेंट आ एग सैल आ सेंटर वाला। हुण इहदे विचों एक गैमेट ने आ 2 सी ना, इन्हां दोनों विचों एक ने इहदे नाल फ्यूज़ कर जाना तो की बना देना, इत्थे जाके ज़ाइगोट बन जाना। हुण तुहानूं इन्नी गल क्लीयर हो गई होनी कि ह्यूमनस दे विच भी ज़ाइगोट बनदा ही ते इहदे विच भी ज़ाइगोट बनया। ज़ाइगोट लेटर ऑन ग्रोज इनटू एम्ब्रियो, ज़ाइगोट बाद विच किच बदल जाना, की बन जाता ओहदा एम्ब्रियो। द सैकेंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद बाई न्यूक्लियर फाउंड बाय 2 पोलर न्यूक्लियाई सेंटर सैल, इट इज़ कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, सैकेंड जिहड़ा मेल गैमेट आ वो आ जिहड़े सेंटर दे विच 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है ना, एक बारी उन्हें इन्हां एक दे नाल फ्यूज़ करना, एक दूजी बारी उन्हें दूसरे नाल करना। ठीक है, जो दोनों के वक्त सो पहली फ्यूजन इत्थे हुई, एक फ्यूजन हो गई जो एग दे नाल बनया उन्हें ज़ाइगोट बनाता। दूजी फ्यूजन आ 1 नंबर दे नाल हुई, आ जिहड़ा पोलर न्यूक्लियाई है। फिर तीसरी फ्यूजन ये दूसरे नाल भी होगी। ठीक है ना, सो कितनियां फ्यूजन हो गई 3, इस करके इन्हूं असीं बोलते हैं इट इज़ कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। सो दिस प्रोड्यूस प्राइमरी एंडोस्पर्म सैल, ये की प्रोड्यूस करता फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म सैल। द प्राइमरी एंडोस्पर्म सैल डिवाइड्स टू फॉर्म द न्यूट्रिटिव टिश्यू। प्राइमरी एंडोस्पर्म सैल ने की अगे प्रोवाइड करना न्यूट्रिटिव टिश्यू कॉल्ड एंडोस्पर्म। अंडरस्टूड है। सो एंडोस्पर्म नरिश द एम्ब्रियो ड्यूरिंग इट्स डिवेलपमेंट। हुण वो जिहड़ा एम्ब्रियो बनया ही जदों आ पहला गैमेट जदों एग नाल फ्यूज होया ही उदों ज़ाइगोट बनया, ज़ाइगोट तो बाद एम्ब्रियो बन गया। ठीक है, हुण एम्ब्रियो की होऊगा। हुण तुहानूं एक क्वेश्चन आ, ठीक है, इस वीडियो दे विच तुसीं मैनूं आंसर देना है अपना दिमाग लॉजिक यूज़ करके, जेड़ा कि पहले नंबर ते एम्ब्रियो फॉर्म। सो तुसीं उहदा आंसर देना आ उस क्वेश्चन का, मैनूं मैसेज कर देना ग्रुप दे विच कि जदों ये पहला गैमेट एग दे नाल फ्यूज होया ज़ाइगोट, ये दोनों कट्ठियां ही एंटर होंदियां, ये दोनों गैमेट्स जो ट्यूब एंटर कर गई दोनों अंदर एंटर कट्ठे होणगे ओबीयसली। तो हुण तुसीं ये दसो कि पहला फ्यूजन एग नाल होगी, एग दोनों नाल फ्यूजन कट्ठी होनी है, पहला एम्ब्रियो बनूगा, पहला ज़ाइगोट बनता फिर एम्ब्रियो बनता ना। तुसीं ये सोच लो पहला एम्ब्रियो बनता जां पहला की कहते हैं एंडोस्पर्म बनूगा, क्योंकि एंडोस्पर्म की है, एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू आ, एक न्यूट्रिटिव टिश्यू आ। सो ये आंसर तुसीं देना है, मैं तुहानूं हिंट दे दिता एक न्यूट्रिटिव टिश्यू एंडोस्पर्म कि पहला ज़ाइगोट बन के एम्ब्रियो पहला बनूगा जां फिर तुहाडा की बनूगा वो जां फिर एंडोस्पर्म बनूगा। ये तुसीं मैनूं आंसर देना। दोनों ने कट्ठियां ने एंटर करना गैमेट्स ने, ये वाले मेल गैमेट्स ने, और दोनों की कट्ठियां की फ्यूजन होती है और विदिन सैकेंड्स का फर्क पैंदा है पहला किहड़ी चीज़ बनूगी। ये तुसीं अपना दिमाग लॉजिक लग दस्सिओ। और वो एक न्यूट्रिटिव मीडियम आ जिहड़ा प्राइमरी एंडोस्पर्म बनना ना, उन्हें की प्रोड्यूस करना एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव मीडियम आ। अंडरस्टूड है। सो द एंडोस्पर्म नरिश द एम्ब्रियो ड्यूरिंग इट्स डिवेलपमेंट। वो जो एंडोस्पर्म होना उन्होंने कौन खाऊगा हम जो एम्ब्रियो बनया सीगा, क्योंकि वो वास्ते वो भोजन है। बाय दिस टाइम पेटल्स एंड स्टेमन्स आर शेड एंड सैपल्स मे और मे नॉट परजिस्ट। सो ये उस तो बाद जी पतझड़ वगैरह हो जाती होंगी, पैटल्स वगैरह ये सो आर स्टाइल्स एंड स्टिग्मा फ्लावरिंग परफॉर्म डबल फट, इस करके इन्हूं असीं की बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इट इज़ द फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट ब्रॉड बाय पॉलन ट्यूब विद 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेम एम्ब्रियो सैक, वन फॉर्मिंग एम्ब्रियो एंड अदर फॉर्मिंग द एंडोस्पर्म। पहला कहता डबल फर्टिलाइजेशन की होंदी आ, 2 फ्यूजन होंदियां, एक गैमेट की फ्यूजन एग ना होनी, एक पोलर न्यूक्लियाई ना होनी आ, इस करके असीं इहनूं डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जिहदे विच एम्ब्रियो भी बनता है तो एंडोस्पर्म भी बनता। अंडरस्टूड है बच्चे। सो लास्ट ये आंदा सीड फॉर्मेशन तो फ्रूट फॉर्मेशन। इन अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल द एम्ब्रियोज ग्रो एट एक्सपेंस ऑफ एंडोस्पर्म with the endosperm receive foods from the plant. When embryo is fully formed, food is stored either in embryo or in the endosperm. The integument of the whole ovule get transferred into a tough impermeable
ਸੀਡ ਕੋਰ ਦਿਸ ਚੇਂਜਸ ਓਵਿਊਲਸ ਇਨਟੂ ਚੇਂਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਵਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਸੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਦ ਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਓਵਰੀ ਆਲਸੋ ਗਰੋ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਦਾ। ਓਵਰੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਓਵਰੀ ਸੀਗੀ ਬਾਹਰਲੀ, ਆ ਅੰਦਰ ਅਵਿਊਲ ਆ ਓਵਰੀ ਆ, ਓਵਰੀ ਕਿਹ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਰੂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਵੇਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਮੇਕ ਏ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਲੀਅਰਲੀ ਐਂਡ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡਵਾਂटेज ਇਹਦਾ सीड फॉर्मेशन ਦਾ पेरिनेशन ਹੁੰਦਾ, सीड्स आर डॉर्मेंट एम्ब्रो इन परमीएबल टफ सीड को बेस्ट सूटर पास टू अनफेवरेबल सीजन। ਇਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਡਿਸਪਰਸਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਂਥਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੀਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟਾਲ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮॉल ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਈਜ਼ਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਡਿਲੇਡ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਡ ਕੈਨ ਡੋਰਮੈਂਟ ਫਾਰ ਮੰਥਸ ਐਂਡ ਈਅਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਐਡੀਬਲ ਸੀਡ ਸਟੋਰ ਫਾਰ ਲੇਟਰ ਯੂਜ਼। ਕੁਝ ਸੀਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੀਡ ਸਟਰਕਚਰਸ ਐਂਡ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਡਸ ਹੈ ਡੋਰਮੈਂਟ ਐਂਬਰਿਓ ਟਫ ਸੀਡ ਕੋ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਐਂਬਰੋ ਹੈਜ਼ ਇਜ਼ ਐਕਸਿਟ ਟਿਗਲਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਕੁਛ ਖਾਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਦ ਐਂਬਰੋ ਐਕਸਿਟ ਬਿਟਵੀਨ ਕੋਟਿਲਿਨ ਨੋਡ ਐਂਡ ਪਲਮਿਊਲ ਇਜ਼ ਐਪੀਕੋਟਾਈਲ, ਵੈਰ ਦ ਏਰੀਆ ਬਿਟਵੀਨ ਕੋਟਿਲਿਨ ਨੋਡ ਐਂਡ ਰੈਡੀਕਲ ਇਜ਼ ਕਾल्ड ਹਾਈਪੋਕੋਟਾਈਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਪਾਰਟ, ਰੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਰੂਟ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਲਮਿਊਲ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਸਟ ਲੀਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਰੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਡਰ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਡ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਪਾਣੀ। ਸੀਡ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਲਮਿਊਲ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਗਰੋ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕਵਰਿੰਗ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਰੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਰੂਟ ਬਣਾ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੋਇਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਰੂਟ ਸਿਸਟਮ। ਅਤੇ ਗਰੋਇੰਗ ਪਲਮਿਊਲ ਕਮਸ ਅਬਵ ਦਾ ਸੋਇਲ, ਜਿਹੜਾ ਪਲਮਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੂਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਵਗੈਰਾ। ਤੋ ਜਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਸੀਡ ਨਾਓ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਦਾ ਸੀਡ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਸਟ ਆਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਸੀਡ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਰੂਟ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਉਹਦਾ ਸ਼ੂਟ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸੈਕਸੁਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਜਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਬੇਟਾ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਇੰਟਰਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ 1 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਵੀਵੀ ਪੈਰਸ, ਓਵੀ ਪੈਰਸ, ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਓ ਬੇਟਾ। ਆਈ ਵਿਲ ਚੈੱਕ ਯੂਅਰ ਕਾਪੀਜ਼। ਇੱਕ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਲਾਵਰ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਟੋਪਿਕ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੋਪਿਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ। ਉਹ 'ਚ ਦੋ ਪਾਰਟ ਆਉਂਦੇ, ਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।